तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजीएफ प्लीज आपको कैसे स्वागत करें। सभी का डीजीएफटी प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारे जो प्रोग्राम का मेन एजेंडा है वो है डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे बात करना। और क्या क्या पॉलिसीज है डीजीएफटी का एक्सपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंसेस को लेकर, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री कुमोद कुमार जी को वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। मैं आज के इस कार्यक्रम को विजन करने के लिए दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देता हूं और सुजीत कुमार निराला जी को भी मैं कहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में अ, आए और यहाँ जो हमारे बी हब में स्टार्टअप्स हैं उनके महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इन्होंने सहमति दी। मैं हमारे जितने भी स्टार्टअप हैं जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और यहाँ भी हैं, उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी का, कि वो भी अपने अत्यंत बिजी शेड्यूल के बावजूद वो इस कार्यक्रम में इनको आए। मैं इस बात को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा इन इस तरीके का कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि यहाँ के रिजर्व बैंक और यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी में वो आगे मदद करता रहेगा। और मैं एक बार पुनः जो है ताली बजाकर सुजीत की बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अब डॉक्टर राणा सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप एड्रेस से। Good morning, everyone. It's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to extend a warm welcome to Sujit Kumar Nirala sir, who is FTDU as DDRT of based at Kolkata. I'm thankful to PhD Chamber of Commerce in general and Mr. Pranav Singh ji in particular, who was the Resident Director for Bihar and Jharkhand. And it's important for us to understand that foreign trade is playing a phenomenal role in the growth trajectory of the country. And it's important for us to understand how we, as CIMP, BIF, and BHUB and CIMP together can join hands with the DGFT office to understand what are the various schemes, programs of DGFT, and how we can leverage the existing programs and schemes. What are the programs which can enable the entrepreneurs and startups to strengthen their knowledge, skills, and competencies to further their strength in the process of ensuring exports and imports? It's important for us to understand that most of the processes at DGFT office have been digitized and they are online. Right from getting the IEC code, importer exporter code, there are series of programs under the Niryat Bandhu scheme. Most of the programs have been recorded for the existing startups and other stakeholders of the international trade community. Right from understanding about Incoterms, what are the Incoterms, what are the compliances to be made, what are the formats to be used, how to make application online, code. India Trade Portal is an impressive portal to showcase the trade statistics of the country. What are the imports and exports being done from India? How the startups are playing a phenomenal role? What are the various process compliances to be done? So it's important for us to understand the various challenges and opportunities in the domain of international trade and how we as startups
can understand the challenges, implications, complications, and ramifications to minimize the risks associated to import and export. Sometimes, a lot of us, we have a fear psychosis. It's a very cumbersome process. No, let me help you understand, all of you, that import and export has become a lot more simpler, easier, convenient, and conducive to the startups in general, and also to the other trade bodies, especially the international trade stakeholders. So it's important for us to understand the finer nitty-gritties of the process, procedures, and we are delighted to inform all of you that a government official traveling all the way from Calcutta to come to Bihar to help all of us understand what is DGFT office to offer to all of us as startup community stakeholders, and how we can ensure better compliance to the import and export processes, and how we can leverage the various schemes, policies, programs, and procedures so that we can become successful in the domain of international trade. We once again welcome you, sir. Now I would request Mr. Sujit Kumar Nirala to kindly address. Can be bilingual in English to Tamil. हम तो हिंदी में बहुत बड़े सर काफी लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दे ऑल आर स्टार्टअप्स. अप्रोक्स 50 प्लस स्टार्टअप्स आर कनेक्टेड विद अस ऑनलाइन आल्सो. धन्यवाद सभी को और इतना बढ़िया प्रोग्राम के लिए सर ने जैसे CMPI है और PHDC के सौजन्य से ही हम लोगों ने DGFT को भी इनवाइट किया और इसके लिए हम काफी धन्यवाद देते हैं सभी लोग. DGFT पहले तो DGFT का ऑफिस हमारा पटना में भी था, मगर 2019 से ये ऑफिस हमारा कलकत्ता ऑफिस के साथ मर्ज कर गए. तब से बिहार के लोग सारे चीज तो ऑनलाइन हो गए हैं और ऑनलाइन होने के बाद फिर भी हम लोग मैंने काफी कुछ बीच बीच में यहाँ निर्यात बंधु स्कीम के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस चलाते हैं. और अभी हम कुछ यहाँ जो कैसे हम लोग ये सबसे पहले तो मैंने इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता होती है जिसको IC कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. और बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के हम लोग फिर एक्सपोर्ट के बिजनेस में घुस नहीं सकते हैं. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेना एक्सपोर्टर के लिए सबसे जरूरी सबसे पहला काम. आपको एक रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए और फर्म के नाम से बैंक में अकाउंट होनी चाहिए. ये है. इसके बाद फिर GST रजिस्ट्रेशन भी मस्ट है इसके IC के लिए. ये रहेगा और फिर इसमें आपको मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल ID होगा. इसके माध्यम से DGFT के साइट पे जाके dgft.gov.in पे जाएंगे और फिर अप्लाई IC करेंगे. अप्लाई IC जिसमें आपको फिर ईमेल ID और मोबाइल नंबर को वैलिडेट करके फिर वो प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे. सारा चीज वो सिस्टम खुद बताते चला जाएगा. खुद ब खुद सारा अपलोड करेंगे. अभी पहले 10 डिजिट का न्यूमरिक नंबर इश्यू होता था जो काफी पहले मैनुअल भी होता था, बाद में जाके फिर ये ऑनलाइन भी 10 डिजिट का न्यूमरिक होता है. अभी आज के दिनों में हमारा पैन ही IC हो जाता है. पैन को ही IC में वैलिडेट कर देता है DGFT. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसके बाद ये जब हमारा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तब आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं. और इसके बाद ही कोई खास खास स्कीम्स जो हमारे जैसे है कि CGCG लाइसेंस भी हमारे यहाँ से इशू होता है, एडवांस ऑथराइजेशन भी इशू हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस इशू होगा. ये सारा लाइसेंस आपका DGFT के पोर्टल पे मिल जाएगा. सारे चीज ऑनलाइन, एक एक चीज ऑनलाइन में ही मोड में ही जाना. और आपका ये EPCG लाइसेंस के लिए फिर जब IC होल्डर है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की स्कीम है. आप माल को ड्यूटी फ्री ही लाएंगे, 0% ड्यूटी पे माल आएगा.
मगर उसमें फिर है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिक्विड एसेट अमाउंट के का 6 टाइम आपको 6 ईयर में एक्सपोर्ट करना है। 6 टाइम 6 ईयर। 6 ईयर, 2 साल आपका फिर इसमें वैलिडेशन भी मिलेगा। मैंने टोटल मान के चलिए कि 8 ईयर्स में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेना है। ये इसका ईपीसीजी स्कीम के तहत काफी अच्छी स्कीम है एकदम। सारे लोग इसमें मैंने ईपीसीजी के माध्यम से भी जितना भी जो भी आपके जैसे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी मशीनरी ला रहा है, तो वो आपको लाइसेंस लेने का फिर 6 मंथ्स के अंदर में भी आपको इंस्टॉलेशन भी मशीन को करवा लेना है जब मशीन आ जाता है। और इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट फिर जैसे ही जमा करेंगे तो फिर आपका 6 ईयर जब से वो हुआ वो चालू हो जाएगा। फिर स्कीम्स तो बहुत सारे हैं, मगर ये सारा आईसी के लेने के सबसे पहले आईसी लेंगे ही लेंगे। लेने के बाद भी और काफी कुछ हमारा, तो जैसे बिहार आपका बहुत बड़ा एरिया, मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा एरिया हमारा नेपाल सटा हुआ है। 3-4 पोर्ट तो एकदम सीधा सीधी नेपाल से सटा हुआ है। जैसे जोगबनी का पोर्ट है, इधर भिट्ठा मोड़ है, यहाँ पे फिर ये ये रक्सौल का पोर्ट है। तो आप नेपाल को भी एक मार्केट के रूप में चुन सकते हैं बगल से। और फिर बांग्लादेश का भी पोर्ट हमारा सट जाता है, पानी टंकी और ये सब सब करीब करीब सटा हुआ है बिहार से। तो संभावनाएं तो काफी हैं यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए। नेपाल में मैं जब यहाँ ऑफिस हमारा था उस समय, मैं बता रहा हूँ 2012 से 19 के बीच में नॉन बासमती राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, माने हर साल इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, इतना ज्यादा। और वो बिहार के लोग नहीं कर रहे हैं, सारे लोग यूपी के लोग आ रहे हैं। क्योंकि लाइसेंस जो देना था वो हमारा बिहार ऑफिस से देना था। तो हम समझ रहे हैं कि यूपी में मिल इतने हैं, कम से कम तो 10,000 मिल हैं। अब बिहार में मिल बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत आपका सासाराम एरिया में है जो लोग वो लगाए भी हैं। तो बिहार गवर्नमेंट काफी कुछ उन लोगों को फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया, तब वो जाके यूपी के लोग ही लगाए हैं बड़ा बड़ा मिल। जैसे वो वहां पर बेबीलोन राइस मिल है बड़ा, फिर आपका सिद्धि विनायक है, सब यूपी के लोग हैं। तो उस एरिया को पकड़ करके भी चल रहे हैं। अवेयरनेस की आवश्यकता तो है निश्चित रूप से। जब हमारे यहाँ का राइस और वो यूपी के लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। खूब खूब लाइसेंस खूब चाप, मैंने मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पटना ऑफिस से महीने में कम से कम तो 40 से 50 हजार मेट्रिक टन का राइस का प्रोडक्शन यहाँ से जारी हो। इतना ज्यादा राइस भी गेहूं भी। अभी तो इस पे थोड़ा अभी रोक लगी है किस कारण से सर? अभी रोक लग गई है थोड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसी के अनुसार से। अभी नॉन बासमती राइस पे अभी जो फ्री जा रहा था ना, फिर ये रजिस्ट्रेशन लीजिए और राइस भेजिए। तो बहुत कुछ उस समय में तो बिहार के लोग तो रहते ही नहीं थे, सब यूपी वाले ही भेजे। कुछ पंजाब के लोग भी भेजे, यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा के लोग भी आते थे। क्योंकि सारे ऑफिस का सारे बिहार इंडिया के सारे स्टेट का इशूइंग के लिए नेपाल के चलते पटना ऑफिस को किया था। तो सर थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, यहाँ बस राइस का कैसा है? थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। अभी मलेशिया मलेशिया का तो है। बहुत सारे एक्सपोर्टर लोग मलेशिया के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन लेनी है उसमें, क्वांटिटी रजिस्ट्रेशन का। जब भी कभी वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा डीजीएफटी के साइट पे भी मिल जाएगा। वो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, ये है उसमें। तो सिंपल है, आईसी होल्डर जो भी हैं, आईसी होल्डर अपना वो जो आईसी होल्डर है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले करके आप भेज सकते हैं अपने मटेरियल। या पीडा की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो है डीजीएफटी में आपका जो भी मैंने अपीडा को भी दे दिया, बहुत सारे चीज को अपीडा को भी दे दिया।
बहुत सारे चीज निकलते निकलते, जैसे अभी इसमें से निकल करके फिर वहाँ कॉमन प्लेटफॉर्म है घुसने के लिए, वहां से फिर डाइवर्ट करता है। अभी अभी एपीडा को भी दिया इसका। तो फ्री था उस समय जब रजिस्ट्रेशन में हम लोग डीजीएफटी दे रहे, डीजीएफटी राइस और व्हीट दोनों का। ये अभी भी हमारा साइट पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट के लिए, उसमें भी आप देख सकते हैं। और अभी अभी के दिनों में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिहार के लोग धान को भेजने के लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। धान में क्या प्रोसेस उन लोग करेंगे वहां पर फिर धान को? नहीं, धान को प्रोसेस वो भेज रहा धान, यहाँ भी जो पैडी राइस इन हस पैडी जो रिस्ट्रिक्टेड है। सर। अब जी जी सर मेरे जो क्वेरी था। हाँ हाँ, सर जैसे मखाना तो जैसे वगैरह मखाना वगैरह टूल्स वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या लाइसेंसिंग वगैरह की मतलब जरूर आवश्यकता होगी? आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आईसी के थ्रू ही। सिर्फ आईसी चाहिए उसमें सर या फिर आईसी उसके अलावा और कुछ चाहिए? आईसी के थ्रू करेंगे और वो आपका जो उसका इंस्पेक्शन जो एजेंसी है उससे सर्टिफिकेट देगा। इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेट ले करके आप अपना तो मखाना तो बस पैकेट मैंने पैकेट करेंगे ना उसको, ये सर पैकिंग भी पैकेजिंग। करना है और जैसे फ्लेवर्ड मखाना लाइक क्योंकि जैसे कुरकुरे वगैरह आप देखते हो कि सर मल्टी बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह में होते हैं और भी। हाँ तो उस टाइप का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ वैसा लाइक फ्लेवर्ड मखाना डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स और उसको हम यूएसए के मॉल्स वगैरह में हम लोग उसको वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोगों को मतलब पता ही नहीं कि मतलब करेंगे कैसे। तो अगर आपके एंड से अगर कुछ गाइडेंस और सपोर्ट लाइसेंसिंग को लेके वो सारी चीजें अगर आप सर हमारी मदद कर सके तो। हाँ तो लाइसेंस इसमें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो आपको आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया है? नहीं सर अभी तो नहीं लिया है सर। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले सबसे पहले आप ले लीजिए। जी सर। और आपका जो प्रोडक्ट ये फ्री है। फ्री है बिल्कुल। हाँ, इसमें लाइसेंस का स्पेशल अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। इनफैक्ट जब आईएसी हाँ इनफैक्ट जब आईएसी कोड लेने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आते हैं, कौन कौन सा चीज में आप इंटरेस्टेड हैं। वो तो आप सब टिक लगा दीजिए, हाँ, जो भी प्रोडक्ट तो है नहीं टिक तो लगा। स्पेसिफिकली आप उस पर कर सकते हैं हाँ हाँ हाँ, और कर उस सकते हैं। बेसिस पर आईएसी कोड इजीली मिल जाता है। क्योंकि ये तो सिस्टम जनरेटेड है System IC, generated। आप तो कहीं ऑफिस जाने की आवश्यकता भी नहीं। आप जैसे ही फी पेमेंट करें। इवन यू वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज इन हेल्थ केयर और एजुकेशन, वो भी ऑप्शन। हाँ है ऑप्शन उसमें, तो आप उसको तो एकदम सिस्टम जनरेटेड है, आप आईसी जनरेट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है आईसी करने में। हाँ वही है कि एक साल में उसको अपडेट करना है। अपडेट नहीं करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाए। ज्यादा दिन डीएक्टिवेट रहेगा तो फिर सस्पेंशन में चला जाए। तो इसमें आपको समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, और वो तो 1 घंटे के अंदर सर वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाए। हाँ तो उस बेसिस पे करेंगे। और ये जो मखाना वाले बोल रहे हैं तो उसका एक इंस्पेक्शन एजेंसी है किनको दिया है, वो देख करके फिर वहां से आप सर्टिफिकेट लेकर के फिर एक्सपोर्ट करेंगे। धान को प्रोसेस वो भेज रहा था, यहाँ की जो पार्टी राइस इन हस पार्टी जो रिस्ट्रिक्टेड है। सर। अब जी जी जो सर क्वेरी था। हाँ सर जैसे मखाना वगैरह हम लोग रूल्स वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या लाइसेंसिंग वगैरह की मतलब जरूर आवश्यकता होगी? आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आईसी के थ्रू। सिर्फ आईसी चाहिए उसमें सर या फिर उसके अलावा और कुछ आईसी के चाहिए? थ्रू करेंगे और वो आपका जो उसका इंस्पेक्शन जो एजेंसी है उससे सर्टिफिकेट देगा। इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेट ले करके आप अपना तो मखाना तो बस पैकेट करेंगे ना उसको, पैकेजिंग। ये सर पैकिंग भी करना है और जैसे फ्लेवर्ड मखाना लाइक क्योंकि जैसे कुरकुरे वगैरह आप देखते हो कि सर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और भी। हाँ तो उस टाइप का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ वैसा लाइक फ्लेवर्ड मखाना डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स और उसको हम यूएसए के मॉल्स वगैरह में हम लोग उसको वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो लेकिन हम लोगों को मतलब पता ही नहीं कि मतलब क्या करेंगे कैसा। तो अगर आपके एंड से कुछ गाइडेंस और सपोर्ट लाइसेंसिंग को लेके वो सारी चीजें अगर आप सर हमारी मदद कर सकें तो।
हाँ तो लाइसेंस इसमें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो आपको आपने को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया है? नहीं सर, अभी तो नहीं लिया सर। नहीं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले सबसे पहले आप ले लीजिए। जी सर। और आपका जो प्रोडक्ट ये तो ये फ्री है। जी है बिल्कुल। हाँ इसमें लाइसेंस का स्पेशल अलग से लाइसेंस लेने